Hello everyone, welcome to the channel. In this session, we will discuss an article of Indian Express. So this is an article about equality in undergraduate education. ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि जो जेंडर गैप है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में वो कैसे धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द आर्टिकल. So this is an essay. So this is an essay which says equal an equal classroom. Closing gender gap in undergraduate education is heartening, and COVID must not be allowed to eat away all these gains. So they are talking about the undergraduate education in which the gender gap is closing. It means that more women are getting enrolled in undergraduate courses. Okay. So when it comes to gender equality, जब भी gender equality की बात होती है, there are means to go in numerous aspects of Indian social life. ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमारे इंडिया में जेंडर इक्वालिटी की बात होती है तो देयर आर मील्स टू गो इन न्यूमरस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोशल लाइफ, बट द गैप इज क्लोजिंग. लेकिन ये जो गैप है ये धीरे धीरे क्या है, क्लोज हो रहा है. ओके, इट इज decreasing. The gap is closing in the undergraduate classroom, right? All India, देखिए जो एक सर्वे है, All India Survey on Higher Education, it is AISHE. All India Survey on Higher Education reports, इसने ये रिपोर्ट दी है कि जो नंबर ऑफ वुमेन है एंड मेन एनरोल्ड इन बैचलर ऑफ कॉमर्स, दैट इज BCom, across the country is now equal, and this is a very good thing. So number of women and men enrolled in bachelor of commerce programs across the country is now equal, a reversal from the state of affairs even 5 years ago. Okay, so 5 years ago it was not the case. The women were less in numbers in undergraduate courses. So this follows significant strides in other undergraduate programs. Okay, so this is we are talking about BCom की बात हो रही है जिसमें जो women है they are equal to the men. Okay, not only did women catch up with men, BSc and MBBS programs में भी ये जो gender gap है वो decrease हो रहा है. they have gone them they have gone on to outpace का मतलब क्या होता है कि जो women है वो men से ज़्यादा है. 2019-20 के अकॉर्डिंग जो women है they are more in number than men in these courses. The disparity remains worrying इन इंजीनियरिंग एंड लॉ. अब देखिए यहाँ पर जो हमने बात करी वो BSc की, MBBS की एंड BCom की बात करी, बट इंजीनियरिंग एंड लॉज में द डिस्पैरिटी है वो अभी भी है. ओके, इसमें अभी भी डिस्पैरिटी है अभी इंजीनियरिंग में और लॉ में. नेवरदलेस मीन्स डिस्पाइट ऑफ दैट इट इज सेफ टू से दैट राइज इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 24.5 इन 2015-16 से 27% हो गया इसमें हायर एजुकेशन में, which measures the proportion of students who transition from secondary education is being driven by sharper relative rise in GER for women. This is good news even if these numbers need to be parsed for disparities of caste and class. So the cloud attached to this silver lining is the पेंडेमिक. ओके, पेंडेमिक की बात हो रही है यहाँ पर कि जो पेंडेमिक है वो कैसे इफेक्ट कर सकता है इसको. द इकोनॉमिक शॉक ऑफ द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 एंड अ हार्श लॉकडाउन हैज बीन वर्सन्ड बाय द सेकेंड वेव. तो जो इकोनॉमी को शॉक लगा है ड्यू टू कोविड-19, फर्स्ट वेव में लगा था एंड देन सेकेंड वेव में, द डिसरप्टिव शिफ्ट टू एन ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हैज डिसप्रपोर्शनेटली लेफ्ट आउट वीकर सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स. तो डिसरप्टिव शिफ्ट है ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन की तरफ ड्यू टू कोविड-19, इसने जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको काफ़ी अफेक्ट किया है. इट इज़ डिसप्रपोर्शनेटली लेफ्ट आउट वीकर सेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड women are likely to bear the brunt of this exclusion. Okay, so women are likely to bear the brunt of this exclusion due to the economic shock of lockdown and the disruptive shift from offline mode to the online mode. Now, governments at central and state levels must devise
जो गवर्नमेंट है सेंट्रल लेवल पर और जो स्टेट लेवल्स पर, उनको एक डिवाइस करना पड़ेगा, डिवाइस अ रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज। ओके, फ्रॉम कंसिडरिंग मॉनिटरी सपोर्ट देना पड़ेगा गर्ल स्टूडेंट्स को, टू पुशिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू हैंड होल्ड देम थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। ओके, तो क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को, मॉनिटरी सपोर्ट देना पड़ेगा गर्ल स्टूडेंट्स को, और उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तरफ पुश करना पड़ेगा, उनकी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि उनकी जो हायर एजुकेशन है वो डिसरप्ट ना हो। Colleges and universities must also keep the gender composition of their classroom in mind as they embark on the admission process. See, influx of women मतलब entry of women into higher education एक welcome shift है। Okay, अंडर ग्रेजुएट से हायर एजुकेशन की तरफ ये एक वेलकम शिफ्ट है। बट फॉर मैनी ईयर्स नाउ इट हैज एडेड अप टू अ पैराडॉक्स। क्या पैराडॉक्स है ये? द अपलिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ इंडियन वुमेन। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इंडियन वुमेन का, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। दैट इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन बट ऑल्सो ऑफ कल्चरल वैल्यूज दैट सी वुमेन्स वर्क एज प्राइमरली सर्कमस्क्राइब्ड टू होम। ठीक है, ये जो क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन की वजह से सिर्फ नहीं है, लेकिन वुमेन्स को एज अ होम मेकर देखा जाता है, ना कि अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन में उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। बट ऑल्सो ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक हैज डीपन दीज इनइक्वालिटीज। अब ये जो पहले से ही इनइक्वालिटीज थी, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये और ज़्यादा डीप होती जा रही हैं, इनइक्वालिटीज और ज़्यादा शार्प होती जा रही हैं। जो सीएमआई डाटा है वो शो करता है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, इट फेल अलार्मिंगली। अर्बन एरियाज में ये जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत ही कम हुआ है, वेयर मोर एजुकेटेड वुमेन आर लाइकली टू बी फाउंड इन early 2020 as employment shrank and domestic work increased. Okay, a critical mass of educated employable women is an asset for any economy, right? एक जो क्रिटिकल मास है एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट वुमेन का, एम्प्लॉयबल वुमेन का, एक एसेट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए एंड सोसाइटी के लिए। दीज आर गेन्स दैट द स्टेट कैन इल अफोर्ड टू स्क्वेंडर। ओके, ये जो गेन्स है ना, द स्टेट कैन नॉट अफोर्ड टू फोरगो दीज गेन्स। ओके, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें इन सोर्सेज को टैप करना चाहिए, और जितने भी एम्प्लॉयबल वुमेन है, एजुकेटेड एम्प्लॉयबल वुमेन है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। और जो भी एज अ सोर्स ये काम कर रही है, एज अ रिसोर्स काम कर रही है इकोनॉमी के लिए, उसको फोरगो नहीं करना चाहिए, राइट? सो दीज गेन्स शुड बी टैप्ड। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पैसेज के जो जेंडर गैप है अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में इन बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, इट इज क्लोजिंग, राइट? बट इन हायर एजुकेशन इट इज नॉट द केस। एंड द थर्ड थिंग इज कि जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये जो केस है वो और वर्स होता जा रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी श्रैंक हो रही है, और इसकी वजह से जो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, उसका जो ब्रंट है वो मोस्टली वुमेन को झेलना पड़ रहा है, राइट? सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस article. Okay, so if you want more videos like this, you can subscribe to my channel. Okay, you can subscribe to my channel for more content like this. Okay, so thank you.